teacher by profession having blood group B positive. She is married for 4 years. It is a non-contiguous marriage. She is gravida 3 para 2 with no miscarriage. Previous 2 cesarean section with no alive issue. 1 early neonatal death and 1 intrauterine fetal demise. Last child born was 2 years back. She had her last menstrual cycle on 9th of February 2021, making her expected date of delivery 16th of November 2021 and duration of pregnancy 34 weeks. Admitted in Arif Memorial Teaching Hospital through OPD on 4th October 21 with gestational amenorrhea of 34 weeks and decreased growth of baby diagnosed by ultrasound. My patient conceived spontaneously in her regular menstrual cycle, assumed pregnancy on missing of periods, and confirmed it by urine for pregnancy test when she was 2 weeks overdue. She is sure of her dates. She booked herself with a nearby practitioner where her ultrasound was done and she was reassured regarding single intrauterine pregnancy with heartbeat present. Her blood pressure was checked and certain blood and urine test was done and she was reassured regarding normal reports. However, her oral glucose tolerance test was not done. She has no history of diabetes, hypertension, any renal disease. She was not using any medication in routine. She had no complaint of excessive nausea, vomiting, fever with flu or rash, any vaginal discharge or spotting. She was prescribed folic acid, Loprin and injection Clexane which she used regularly. She was instructed to keep her blood pressure record which has remained normal. Her dating scan was done which was also normal. She perceived quickening at 5th month of gestation corresponding to calendar month of July and fetal movements have remained normal till now. Her anomaly scan was done and she was reassured regarding normal growth, adequate liquor and no gross fetal anomaly. She monitored her blood pressure which remained normal, continued using Loprin, Clexane and iron and calcium supplements regularly. However, urine for protein was not checked and Doppler scan was not done in end of second trimester. According to my patient, her perception of growth of pregnancy remained normal according to months. On routine scan 3 days ago, she was told that baby growth has not occurred as compared to previous scan. However, she was reassured regarding normal fetal movements, adequate amount of liquor, normal Doppler values, and placenta was upper with no abnormality. There is no history of raised blood pressure, vaginal leaking, or bleeding at the time of this scan. There is no family history of anomalous baby. Her BMI is 26 kilogram per meter square. There is no history of itching or pruritus over the body. No history of any viral or bacterial infection, any drug intake. Patient is non-smoker. She was referred for further evaluation and admitted for workup. Here in the hospital, her certain tests in blood and urine test, oral glucose tolerance test and scan was done. However, detail of the reports is not known to the patient. She is para 2 previous to cesarean section. Her first pregnancy was 3 years back. Female child born at 8 months of gestation when she had emergency lower segment cesarean section done due to raised blood pressure. She does not remember weight of the baby who remained admitted in NICU for 3 days and expired due to prematurity and breathing problems. Patient did not have regular antenatal checkup or used any medicine in this pregnancy. Her second pregnancy was 2 years back, female child born at 7 months of gestation. She had regular antenatal checkup, no history of raised blood pressure, diabetes or any anomalies. She consulted hospital due to lower abdominal pain where she was told to be in labor and have an intrauterine death and her emergency cesarean section was done due to previous one with short interpregnancy interval. There is no history of vaginal bleeding, leaking, or raised blood pressure at time of diagnosis. She does not remember weight of the baby. Post-operatively, no tests were done to find out cause of IUD. There were no intraoperative complications or history of blood transfusion in both cesarean sections.
Uh, Patient has no history of diabetes, hypertension, tuberculosis, asthma, or any chronic heart or lung disease. Apart from the two C sections, she has no other surgical history. There is no family history of hypertension, diabetes, anomalous babies, or twin baby in the family. Both husband and wife are teachers earning 50,000 rupees per month, living in their own home, and necessities of life are met with ease. On examination, young lady sitting comfortably on bed, well oriented in. एक मिनट, good history. You have covered most of the questions which I could have asked. Anyway, फिर भी इसकी जरा समरी तो बना के बोलिए वैसा. Yes, sir. Sir, 30 years of age, gravida 3, para 2, with no miscarriage, previous to cesarean section, with no alive issue, one early neonatal death, and one intrauterine fetal demise at 34 weeks with small for gestational age baby. फिनिश नहीं, थोड़ा Yes, sir. सा तो इसमें थोड़ी बातें और ऐड कर दीजिए समरी में कि आपने इतनी डिटेल हिस्ट्री बोली है कि आपने पहले बोला पहली प्रेगनेंसी में पीएएच हुआ था इसको, जी सर. उसकी वजह से सेक्शन हुआ. ये इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है ना. जी सर. आपने कहा उसका रेज ब्लड प्रेशर था इसलिए उसका सेक्शन हुआ. तो ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि इसकी पहली प्रेगनेंसी में वो रेज ब्लड प्रेशर की वजह से वी डोंट नो एग्जैक्टली जेस्टेशन पीरियड कितना टर्म से पहले सेक्शन किया गया, लेकिन बच्चा जो है वो कुछ दिनों के बाद नियोनेटल डेथ होगी उसकी. आपने उसका वजन बताना इसमें जरूरी था कि उसका बच्चे का वेट एट बर्थ आज शी डजंट नो. यू कैन कंफर्टेबली से कि मैंने पूछा था और उसको पता नहीं कि वजन थोड़ा था, नॉर्मल था, ज्यादा था, क्या था. तीनों बातें इंपॉर्टेंट है. अगर ज्यादा था तो हम शक करें कि डायबिटीज है या मैक्रोसोमी है. अगर थोड़ा था तो हम IUGR सस्पेक्ट करेंगे. तो वो वजन का रेफरेंस ज्यादा जरूरी है. एक बात, आप ब्लड प्रेशर भी बोला आपने. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल उन्होंने कैसे किया शी डजंट नो, लेकिन लफ्ज कंट्रोल कैसे किया तो आपको समरी में बताना चाहिए. क्योंकि प्रिजम्पशन ये होगी इस हिस्ट्री से कि पहली दफा उसका बच्चा नियोनेटल डेथ हुई चूंकि प्री टर्म सिजेरियन सेक्शन हुआ और ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड था. फिर दूसरी प्रेगनेंसी में शी वेंट इनटू लेबर. आपने कहा डायग्नोसिस वाज मेड शी वाज इन लेबर, लेकिन इमरजेंसी सेक्शन कर दिया उन्होंने. तो आपको ये समरी में ये कहना पड़ेगा कि ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी शी went into labor without prior assessment for VBAC. Without सर ये मैंने ये बोला था कि हर सेक्शन वाज डन ड्यू टू प्रीवियस वन विद शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल. no, short interval is not the answer. तो शॉर्ट इंटरवल के बाद भी VBAC हो सकता है, कोई कंपल्सरी तो नहीं है. क्योंकि VBAC की असेसमेंट है बेबी का साइज, उसकी प्रेजेंटेशन और रूल आउट फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एंड देन सर्विक्स आ जाती है, बिशप स्कोर आता है कि अगर आपने इंडक्शन करनी. तो ये तीन बातें बोलनी चाहिए थी आपको. खैर आपने नहीं बोली, नेवर माइंड. तो फिर वो लेबर में गई तो चूँकि देखो उसकी IUD थी तो फिर क्यों नहीं और प्री टर्म भी थी तो हमें नहीं पता कि उसको वजाइनल डिलीवरी VBAC क्यों नहीं होने दिया. उसका इमरजेंसी स्टिल बर्थ तो कोई ऐसा ही होना चाहिए ना कि IUD के बाद आप वजाइनल डिलीवरी करके कंट्रा इंडिकेटेड होगी वजाइनल डिलीवरी. वरना डेड बेबी को प्रीवियस एक सिजेरियन सेक्शन है, वी विल प्रेफर टू डिलीवर वजाइनल. Her VBAC was not allowed without any explanation. आप लफ्ज ये बोलिए, बोलना चाहिए था समझने में.
आपने क्लैरिटी के साथ ये अल्फाज नहीं बोले, बोथ बेबीज डिड नॉट शो एनी अनोमलीज, क्योंकि कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ स्टिल बर्थ एक मेजर कॉज जो है वो अनोमलीज है, वो अनोमलीज है। तो वो लफ्ज आपने नहीं बोला, बोथ बेबीज लुक नॉर्मल फिजिकली, और वो बोथ बेबीज डिड नॉट शो एनी अनोमली। लफ्ज अनोमली बोलना चाहिए था आपको। तो और फिर आपने कहा, और शुरू हिस्ट्री में बोल दिया कि इस तीसरी प्रेगनेंसी में नो OGTT डन। हालांकि आप कह रहे हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं, उसकी डायबिटीज की नहीं, तो आपका OGTT का कहना जस्टिफाई हो जाता है कि बिकॉज अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ को, ये साथ बोल दिए लफ्ज। हर OGTT वाज नॉट डन दो शी हैज अनएक्सप्लेन्ड IUD स्टिल बर्थ। आई एम सॉरी अवैस के मैंने आपको इस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा है, लेकिन जी सर, नहीं सर, फिर भी तो आपकी हिस्ट्री जो है इट कवर्स most of the questions which perhaps when we discuss they will come out। चलें, ये है पेशेंट आपकी, फिजिकल एग्जामिनेशन बोल दीजिए। बोलिए फिजिकल एग्जामिनेशन। On examination, young lady sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person. Her height is 5 feet and weight 60 kg, making her BMI 26.5 kg per meter square. Pulse is 85 beats per minute, blood pressure 110/70 millimeter of mercury, respiratory rate 17 beats breaths per minute, and temperature was 98.6 degree Fahrenheit. She is not pale, there is no clubbing, koilonychia, no jaundice, thyroid was not enlarged, no edema present, no accessible lymph nodes palpable. There was bilateral vesicular breathing and both first and second heart sounds were audible. Sorry for interruption। नो edema on dependent parts, ये बोलिए। जी सर। यार आप चलते जाइए। On abdominal examination, abdomen symmetrically protuberant, moving respiration, phalansteal scar mark present, no visible vein, pulsation or stria seen. On palpation, abdomen was non-tender, physiofundal height 32 cm, longitudinal presentation was cephalic, liquor seemed to be adequate, and estimated fetal weight was 1.5 to 2 kilograms. And on auscultation, fetal heart rate was 135 beats per minute. Good। और कुछ? She had 2 previous cesarean sections। No tenderness। जी सर, वो ऑन palpation abdomen was non tender, ये बोला था। ये तो जनरल हर कोई बोलता है। ठीक सर। यहाँ स्पेसिफिक बोलना है, नो टेंडरनेस इन लोअर एब्डोमेन। ठीक सर। ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप क्या आपका क्या ढूंढ रहे हैं आप। चलें, ये आपकी हिस्ट्री होगी, गुड हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये दाखिल हो गई है अभी आपके पास आरफ अस्पताल में। इसको हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? First of all, I will counsel the patient that she is at 34 weeks, previous to cesarean section. Both were preterm cesarean section, and no live issue with small for gestational age baby. So my aim of management will be to admit this patient for feto-maternal monitoring. I will monitor the mother and monitor her blood pressure and sign and any sign and symptoms of lower abdominal pain, any and fetal movements. I will monitor the baby with movements by kick count chart and daily. रुक 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 रुक। जी सर। वो मॉनिटरिंग सबसे आखिर में आता है।
तो I will admit the patient and order these investigations. जी सर। फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगी, फिर आपकी मैनेजमेंट में है मॉनिटरिंग ऑफ मदर, मॉनिटरिंग ऑफ बेबी, वो मैनेजमेंट है। जी सर। तो उससे पहले क्या आप क्या एग्री कि उसको दाखिल कर लिया, कि उसको दाखिल क्यों कर रहे हैं हम? उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। To evaluate for the cause of small for gestational age है। बेबी जो तो जिसकी कंप्लेन है। आपने स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आपके क्लिनिकल एक फीचर पे बना दिया है डायग्नोसिस कि उसका 34 सेंटीमीटर की बजाय 32 सेंटीमीटर हाइट है। आपने कहा लाइकर ठीक है, आपने कहा प्रेजेंटेशन ठीक है, आपने कहा फीटर हार्ट 135 है, सब कुछ ही तो ठीक है। तो हाउ कैन यू लेबल ए पेशेंट जस्ट फॉर दैट 2 सेंटीमीटर थिंग कि ये इसको IUGR है? मैं तो सर आपसे IUGR सर जी IUGR स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। सर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज नहीं कहेंगे इसको हम, हाँ क्या कह रहे स्मॉल हैं? फॉर डेट्स। आपने IUGR कहा। सर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। चलो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज मैंने मान ली, ये कितना तो व्हाट्स द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज? What are various causes of small for gestational age? जी सर हाँ, मिस्टेकन मिस्टेकन डेट। डेट्स आपने शुरू में बोल दिया था, शी इज श्योर ऑफ हर डेट्स, आपने बोला था ना ये लफ्ज। हाँ, जी सर। फिर वो तो ना यस रही सर। इसमें, और क्या बात है? वेरी गुड कि अगर हाइट ऑफ फंडस में डिस्क्रिपेंसी हो तो पहली बात आप के रॉन्ग इन डेट्स वो सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो वो श्योर ऑफ डेट्स है। फिर नेक्स्ट बोलते जाइए ना, 3-4 कॉजेज बोलिए। There नंबर can वन, be reduced growth of रॉन्ग the इन baby डेट्स और अनश्योर ऑफ डेट्स। in नंबर 2 sir in जी sir in pregnancy induced hypertension can be ठीक है the cause. वो नंबर 3 होगा है। Sir abnormal lie or placentation can नहीं be नहीं, the cause. मैं इस बारे में बड़ा वो हूँ कि पहला आपने बोला बिल्कुल सही बोला, वही बोलना चाहिए, रॉन्ग इन डेट्स या अनश्योर ऑफ डेट्स, लेकिन यहाँ तो वो श्योर है। नंबर 2 उसका कद कितना बोला था हमने? Sir 5 feet. तो 5 फीट मीन्स थोड़ी सी उसका कद छोटे की तरफ नहीं है, जी सर। तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, जी सर। उसको क्या कहते हैं? Constitutionally हाँ, small baby. ये दूसरी बात हमें पाकिस्तान में सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियां जो हैं वो जनरली दे आर स्मॉल। अमेरिका में तो हर कोई 6 फुट का है। तो नंबर 1 इज रॉन्ग इन डेट्स, नंबर 2 इज वो आपने कई दफा आ गया ही। तो नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, ठीक बोला आपने। फिर उसके बाद आता है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो आपने बोला हाइपरटेंशन है और इन्फेक्शंस हैं, वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, PIH है और प्रीक्लेम्सिया है, रिपीटेड APH है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, दे कॉज स्मॉल बेबी। फिर चौथा क्या होगा? Sir any anomalies in the baby. वेरी गुड, वो एक बड़ा कॉमन फैक्टर है अनॉमलस बेबीज, एनी अनॉमलीज ऑफ द बेबी, उसी में डाल देते हैं हम अनॉमलस पोजीशन, ट्रांसवर्स लाई,
हाइट ऑफ फंडस नीचे हो जाती है। ठीक, let's repeat the causes for small for gestational age। जी बोलिए। आप रिजवान अहमद हर दफा लड़की Small baby, any को maternal medic पहले पहले हम चूंकि सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, आपका पेशेंट नहीं कर रहे, तो पहला रॉन्ग इन डेट्स, अनश्योर problem ऑफ डेट। दूसरा history confusion is small। तीसरा मेडिकल प्रॉब्लम्स, और वो मेडिकल प्रॉब्लम मैटरनल डिजीज भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकती है। चौथा अनॉमलस बेबीज, एबनॉर्मलिटी ऑफ द बेबी, उसी में पोजीशन भी ट्रांसफर स्लाइड भी आ जाएगा। ये 3-4 बातें, मिस्टेकन डेट तो बहुत दफा हो गया, अनश्योर डेट्स। तो ये है आपके स्मॉल, इस पेशेंट में आपने सोची। चलो ये चूंकि मैंने पूछा ना आप इसको दाखिल क्यों कर रहे हो, आपने कहा इनमें से कोई वजह है कि इसकी हाइट ऑफ फंडस थोड़ी है, और फिर दूसरी बात ये है कि इस सेकंड रीजन टू एडमिट, इसके पिछले दोनों सेक्शन वक्त से पहले हुए, प्रीमेच्योर हुए, और दोनों बेबीज, एक आईयूडी हो गई, एक नियोनेटल डेथ हो गई। तो इन व्यू ऑफ दैट, now she is 34 weeks, she needs close monitoring, she needs close। फिर मुझे बताइए अब कि इस पेशेंट को आप दाखिल क्यों कर रहे हो? Sir, I will admit the patient as she is at 34 weeks with previous preterm cesarean section and no alive issue. Good. So my plan of management is to I will review her records and get her labs and detailed ultrasound, including ultrasound for fetal biometry No। Oh, for SD ratio done. तो फेल हो गया, फेल हो गया। I'm sorry, sorry, sorry। बिल्कुल ही। No, don't jump at ultrasound। जी सर। Don't jump at ultrasound। आप दाखिल करके, अल्फाज हैं जी, आप सब नोट कर लीजिए। I will admit, take detailed history, do physical examination, which I have already done. Then I will monitor mother and I'll monitor baby। ये अल्फाज कहने हैं आप, कुछ भी हो, APH, PIH, डायबिटीज, GDM, एनीथिंग। आज का ये मैसेज आपको टेक होम है कि जब आप कहते हैं ना मैं मरीज को मॉनिटर करने के लिए दाखिल कर रहा हूं, आपने ये कहना है, I'll admit the patient, I have already taken detailed history and done physical examination। नहीं होगा तो वो करूँगा। तो उसके बाद अल्फाज हैं, बिल्कुल इनके बगैर आप पास नहीं हो सकते। यही वजह है कि अक्सर आप यहीं पे फंस के रह जाते हो। He jumped on to ultrasound, सीधा अल्ट्रासाउंड से पहले कुछ क्लिनिकल भी हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। कुछ क्लिनिकल बातें भी हैं, मॉनिटरिंग के मदर एंड बेबी बोथ। तो आपने अल्फाज बोलने हैं, I'll admit, take detailed history and do physical examination, then I'll monitor mother and monitor baby, fetus। अब मदर की मॉनिटरिंग आ जाइए। मदर में आप क्या मॉनिटर करना चाहते हैं इस पेशेंट में, बोलिए वैसा। Sir, I will monitor her vitals, including pulse and blood pressure, and Good। for symptoms of lower abdominal pain, and I will instruct the patient to be vigilant for any vaginal discharge or any bleeding। मेरी गल सुनो। जब हम मदर को मॉनिटर करते हो, पहले सिम्टम्स, फिर साइंस, फिर इन्वेस्टिगेशन, मदर की मॉनिटरिंग।
जब मदर को मॉनिटर करना है, पहले हम कहेंगे जी, हम उससे पूछेंगे ये सिम्टम्स, ये अगर ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हें हेडेक तो नहीं है, और एपिगैस्ट्रिक पेन तो नहीं है, और अगर एपीएच की पेशेंट है, ब्लीडिंग तो नहीं है, और जो भी है, जो अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है तो उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो उसके मुताबिक पहले सिम्टम्स, फिर उसके ब्लड प्रेशर डेली कितनी दफ़ा रिकॉर्ड करोगे, जिसको दाखिल किया उसका जनरली हम ब्लड प्रेशर कम से कम सुबह शाम तो लेते हैं ना, ट्वाइस ए डे। जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, हम 6 आवर्ली लेंगे, विल रिकॉर्ड है ब्लड प्रेशर। और फिर नंबर 3 के उसकी सिम्टम नहीं है, वो उसको पूछेंगे फीटल मूवमेंट्स कैसी हैं, और फिर आप स्कार को मॉनिटर करना चाहते हो, तो आपने ठीक बोला, पूछेंगे कि तुम्हें पेन लोअर एब्डोमेन तो नहीं है। ये सिम्टम्स है मॉनिटरिंग की। और फिर साइंस आ जाते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर भी देखूंगा, उसको एग्जामिन भी करूंगा, और डेली एब्डोमिनल हाइट कैसे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लाइक एडिक्वेट है नहीं है, टेंडरनेस है कि नहीं है, और फीटल हार्ट सुनूंगा। और इसमें तो मॉनिटरिंग मदर की इतनी। अब आ गया फीटल मॉनिटरिंग। बोलो फीटल मॉनिटरिंग क्या करोगे, कैसे करोगे? I will जी, I will monitor the fetus by fetal movements by kick count chart, वेरी वेरी गुड, daily माशाल्लाह। daily daily CTG, and plan. सीटीजी के साथ एक लफ्ज ऐड कर लीजिए, किताब में बार बार उसका जिक्र होता है, नॉन स्ट्रेस सीटीजी, जी सर। डेली नॉन स्ट्रेस सीटीजी। आप जरा और वन अप होने के लिए, बिकॉज इट हैज वैलिडिटी ओनली फॉर 24 आवर्स, इस तरह से बोली, एग्जामिनर इंप्रेस होगा आपसे। चले, इसका डेली नॉन स्ट्रेस सीटीजी करेंगे हम। फिर वो बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे रोक के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सीटीजी में क्या क्या देखते हैं। वो बीट टू बीट वेरिएशन, एक्सेलरेशन, वी टाइप, यू टाइप, ये अल्फाज आपको आने चाहिए, आने जी चाहिए। सर। ये डेली उसकी सीटीजी करेंगे। फिर Sir, I will get weekly scan done for AFI, twice fortnightly scan 2 weeks after to see the growth of the baby, and for umbilical artery Doppler for ST ratio. जरा थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे आपके नंबर बनने हैं, यहाँ पे आपके नंबर बनने हैं। तो पहले आपने बोला फीटल मॉनिटरिंग विल बी नंबर 1, आई विल आस्क मदर टू मेंटेन किक चार्ट। अगर रोक के पूछे कैसे मेंटेन करते हैं वो बता। नंबर 2, ये लिखते जाइए प्लीज, आपने सब की फीटल मॉनिटरिंग इसी तरह ही बोलनी है, चाहे एपीएच है, चाहे पीए है, चाहे जीडीएम है, चाहे कुछ जो भी है। नंबर 1, आई विल आस्क मदर टू मेंटेन किक चार्ट। वो डिटेल पूछे तो बता दीजिए क्या 1 घंटा क्या करें। नंबर 2, नॉन स्ट्रेस सीटीजी डेली। अगर वो पूछे डिटेल तो उसकी थोड़ी सी आपको प्रेपरेशन होनी चाहिए कि उसकी रेट, उसकी बीट टू बीट वेरिएशन और एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, ये अल्फाज बोल दिए। नंबर 2। नंबर 3, मैं उसका अगर ये तो 34 वीक्स पे है, इससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी फॉर ग्रोथ चार्ट। वो एक चार्ट बना होता है, उसके अंदर उसकी प्लॉटिंग कि वो उसकी ग्रोथ जो है विद इन नॉर्मल है, 10% परसेंटाइल से नीचे तो नहीं है। नंबर 4, उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल करूंगा, ये अल्फाज बोलने BPP। और फिर उसकी डिटेल पूछी जाए आपसे तो वो आप बोलेंगे कि बायोफिजिकल प्रोफाइल में कौन सी 4 चीजें हैं जो देखी जाती हैं, और फिर उसको कैसे उसकी ग्रेडिंग की जाती है। या कितने से कम हो, 6 से कम हो
तो क्यों वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। अब लेकिन आपने सिर्फ लफ्ज बोलना है पी ट्वाइस अ वीक, चूंकि उसकी वैलिडिटी 3-4 दिन की होती है। फिर आपने बोलना है डॉपलर, इस ऑर्डर में बोलना है। डॉपलर जो है एट 20 वीक्स यूट्राइन आर्टरी का, और उसके बाद 24 वीक्स अम्बलाइकल आर्टरी का। मैं दोहराता हूं, ये आज की ये बात जो है आपके हर ऑलमोस्ट इम्तिहान में हर ऑब्स्टेट्रिक केस को अप्लाई करेगी। I'll admit the patient, take detailed history, do general physical examination, which I have already done. Then I'll monitor mother and I'll monitor fetus. I'll monitor mother by asking her symptoms and signs. Or fetus, kick chart, non-set CTG, biophysical profile, growth chart, biophysical profile, and Doppler. बखुदा अगर आप इस तरह से बोलेंगे, आपका कोई भी केस है वो, चूंकि एक्यूट इमरजेंसी तो नहीं होगी आपके इम्तिहान में ना, कि सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ तो इम्तिहान में नहीं लाया जाएगा, क्रॉनिक केस ही होगा। अगर आप इस तरह से बोलेंगे और तो आप इंशाल्लाह पास हैं, क्योंकि यहीं पे आप अधूरे से रह जाते हैं, फंस जाते हैं। जो जैसे आप सीधा अल्ट्रासाउंड पे चले गए, I'll admit, and how will you monitor ultrasound, Baba? That is number 3, number 4 on the list. ऐसे ही फंस गया, अल्ट्रासाउंड में घूम 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 के मुश्किल से बाहर निकले। अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखोगे, लाइकर कितना, AFI कितना, और फलाना, वो अल्ट्रासाउंड में घुमाती रहेगी आप। फिर बाद में कहेगी उसकी सीटीजी नहीं करोगे तो हंस देगी साहब, आपका मजाक उड़ा देगी। नहीं, मैं दोहराता हूं, आप किसी भी बात के लिए आपने मरीज को दाखिल करना है तो आई विल एडमिट द पेशेंट, डिटेल्ड हिस्ट्री, डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन maternal monitoring and fetal monitoring. maternal monitoring में क्या क्या करूंगा, fetal monitoring में ये 4 चीजें इसी ऑर्डर में बोलनी है। किक चार्ट, नॉन स्ट्रेस, बायोफिजिकल प्रोफाइल, ग्रोथ चार्ट। देखो मैं खुद भूलता हूँ, ग्रोथ चार्ट अगर वक्त है काफी, इज एडमिटेड इन वीक्स, तो फिर ये, फिर वो। डॉपलर में किस किस चीज का, सेरिब्रल आर्टरी का डॉपलर कब होगा, और ये अम्बलाइकल आर्टरी का कब होगा, यूट्राइन आर्टरी का कब होगा, ये बातें बोलेंगे। जब ये बोल लेंगे आप यहीं पे पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बोलने के बाद फिर कहेंगे माई डिसीजन व्हेन एंड हाउ टू डिलीवर द बेबी विल डिपेंड अपॉन दिस। बस अगर वो सारा कुछ ठीक है, माँ ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग ठीक है, बेबी की मॉनिटरिंग ठीक है, तो आई टेक द प्रेगनेंसी टू 37 कंप्लीटेड वीक्स और फिर डिलीवर करूँ। कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ है ना, इसलिए 37 कंप्लीटेड वीक्स पे डिलीवर कर लेंगे मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा है तो उससे पहले कर लेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन मॉनिटरिंग। कैसे करोगे, इसमें तो कोई आसान हो गया, कोई रौला ही कोई नहीं, प्रीवियस 2 सेक्शन करूंगा। और अगर प्रीवियस 2 सेक्शंस नहीं है, एक ही सेक्शन है या नो सेक्शन है, पॉसिबिलिटी वजाइनल डिलीवरी की है, तो आप कहेंगे आई विल इवेलुएट हर फॉर वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी के लिए नंबर 1 आप कहेंगे कि मैं देखूं लाइफ ऑफ द फीटस। नंबर 2 के रूल आउट CPD
तीसरा बिशप स्कोर। इस ऑर्डर में बोलेंगे आप। बिशप स्कोर आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या देखते हैं, वो क्या स्कोर हो तो क्या करते हैं। फिर अगर आप कहें कि मैं उसकी इंडक्शन ऑफ लेबर करूंगा, इसमें तो नहीं है नज़ार, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए किस तरह करोगे? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या डोज दोगे, कितनी फ्रीक्वेंटली दोगे, ओरली दोगे, वजाइनली दोगे, क्या करोगे? मॉनिटर लेबर को कैसे करोगे? ये सीक्वेंस में आपके इंफॉर्मेशन आपने देनी है एग्जामिनर को, और अगर आप इस तरह से रखेंगे तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम। खैर, अब इस पेशेंट में आ गया वैसा कि हमने उसको दाखिल कर लिया, फिर शुरू कीजिए आप। आपने उसकी डिटेल हिस्ट्री ले ली फिजिकली, फिर क्या करो? Sir, management from the जी बोलिए। Sir, as a patient, I will counsel the patient that as she is at 34 weeks with previous to preterm cesarean section and no alive issue, so I will admit her and do fetal-maternal monitoring. I will monitor the mother for her symptoms, inquire about fetal movements, any pain in lower abdomen, and monitor her for her pulse, blood pressure, and any pain or tenderness over her scar. I will examine daily fundal height to ascertain the growth of pregnancy. I will monitor the fetus by daily kick count chart, non-stress CTG, as it has validity of for 24 hours. I'll do ultrasound for growth chart, biophysical profile twice a week, and umbilical artery Doppler weekly. My decision to deliver the baby will depend upon this monitoring, and my aim of management will be to take pregnancy as close to as term as possible. I will plan her elective lower segment cesarean section at 37 weeks, provided no emergency before that. I will involve neonatologist at the time of cesarean section for care of the baby. वेरी Give गुड, ste- माशाल्लाह। give give her steroid cover for the cesarean section. During I will पहले बोलो ना, while she is admitted 34 36 वीक्स पे दिया जाता है, वो दे दोगे। वेरी गुड। ये है, अगर आप इस तरह से बोलो 3-4 मिनट आप बोल रहे हो, आप पास हो गए। इसमें कहाँ तुम्हें कोई पकड़ सकता है? आपने हर पहलू जो है इस पेशेंट का कवर किया है। एनॉमली स्कैन तो पहले की बात हो गई, 34 पे आपके पास आई है, आपने माँ को देखा, बेबी को देखा, सेक्शन का प्लान किया, कब करना है वो भी बता दिया, और डिलीवर इफ, ये मैं पूरा पढ़ नहीं सका। खैर, तो ये सारी बातें तो शायद पूरा पढ़ नहीं सका कि अगर इसमें तो इंडक्शन ऑफ लेबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रीवियस 2 सेक्शंस हैं, और अगर ये हो कि इंडक्शन ऑफ लेबर की है वो नहीं कामयाबी, उससे पहले हमने वो कहा CPD बिशप स्कोर, दोनों बातें। तो लाइट ठीक होनी चाहिए, और बिशप कोई कंट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी की नहीं होनी चाहिए फॉर वजाइनल डिलीवरी, क्योंकि सीवियर जो होती है कॉम्प्लिकेशन, फीटल डिस्ट्रेस होता है, उसमें सेक्शन ही करते हैं स्ट्रेट अवे इलेक्टिव। लेकिन अगर बेबी इज वेल इनफ फॉर टू सस्टेन लेबर पेन्स, तो फिर CPD रूल आउट करते हैं। एक आया था सवाल कि CPD कैसे रूल आउट करते हैं, मैं तो आई लव टू टॉक अबाउट इट, और पूरा घंटा ही बोलता जाता हूँ CPD के मतलब। अगर आप कहेंगे तो एक लेक्चर में उस पर भी दे दूंगा कि हाउ टू एवेलुएट पेल्विस और रूल आउट CPD। फिर वो करके फिर बिशप स्कोर आपको आना चाहिए कि वो क्या होता है, और इंडक्शन कैसे की जाती है, और वो वेरियस मेथड जो आपके वार्ड में इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर आजकल प्रोस्टाग्लैंडिन है, जैसे ऑक्सीटोसिन ड्रिप है, तो वही आप बोलिए जो करते हैं, मॉनिटरिंग ये करें, आप पास हो।
कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो आप कर रहे हो वही बता रहे हो, सब कुछ उसी तरह ही है। चले, अब रह गए सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू, सर। थैंक यू वैस, यस जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा ना, एग्जाम में पेशेंट था, 34 वीक्स की फंडल हाइट थी सर। हाँ और सर 34 वीक्स बाय डेट था और 32 सेंटीमीटर की फंडल हाइट थी, जैसे डॉक्टर साहब का पेशेंट है। तो जी, सर इसमें मैंने ये कंफर्म करना था कि क्या सिर्फ इतनी डिस्पैरिटी पे हम पेशेंट को एसजीए लेबल करेंगे या इट्स नॉर्मल? जस्ट 2 सेंटीमीटर की डिस्पैरिटी पे सर हम एसजीए कहेंगे एग्जाम में? ये कह दीजिए स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, ये तो यू आर नॉट सेइंग आईयूजीआर, यू आर नॉट गोइंग सेइंग ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, एफजीआर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसी है। वो डिस्क्रिपेंसी की मैंने पहले आपसे शुरू इस क्लास में कहा कि सबसे पहले तो रॉन्ग इन डेट्स, अनश्योर ऑफ डेट्स, अनश्योर ऑफ डेट्स, वो शी कुड वेल बी, क्योंकि अब मैं उस बात को और आगे बढ़ा लूं, हम डेट पक्की है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या प्रोलॉन्ग्ड है, इंस्टेड ऑफ 4 वीक्स 6 वीक्स का, तो खुद ही ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते ऐड हो जाएंगे इस तरह से। तो वो ये ना एफजीआर है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ना आईयूजीआर है, ये स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज SGA है। और वो स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज की पहली बात बोली हमने कि अनश्योर ऑफ डेट्स, दूसरा बोला कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं, नॉर्मल होते हैं वो, लेकिन वो होते छोटे। बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंड में एवरेज बर्थ वेट ऑफ द बेबी इज 7.5 पाउंड्स, हमारे यहाँ 7 पाउंड का भी हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन सर हमें तो बताया गया है कि 3 सेंटीमीटर से ज्यादा की डिस्पैरिटी हो तो फिर आपने सर एसजीए लेबल करना है, अदरवाइज 2 to 3 सेंटीमीटर तक की अगर डिस्पैरिटी आती है विद इन जेस्टेशनल एज कैलकुलेटेड बाय डेट्स एंड फंडल हाइट के दरमियान, तो फिर आपने वो नॉर्मल लेनी है। सर ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। मैंने आपके का यही जवाब दिया है, क्या आपसे पूछा गया ये डिस्क्रिपेंसी 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 3 की, ऑन द हायर साइड और लोअर साइड, ये क्यों है? तो आप जवाब होगा जी, नंबर 1 आपका जवाब इस तरह ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1, शी कुड बी रॉन्ग इन हर डेट्स, ज़्यादा भी हो सकती है। और नंबर 2, इससे कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल बेबी। फिर नंबर 3 आगे फिर दूसरी है, और पहले हमने यही जो पहली बोली वो पहले रूल आउट करेंगे। तो इसलिए आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बल्कि ये सही बात है, ऐसे ही आपको पेशेंट को देखना चाहिए। जरूर डोंट जंप एट इट, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आईयूजीआर हो गया, तुम्हें आईयूजीआर हो गया। और शायद इस पेशेंट में ऐसा ही हुआ कि उसको आईयूजीआर करके सेकंड प्रेगनेंसी में उन्होंने पता नहीं कोई वजह होगी कि स्टिल बर्थ भी होगी उसकी, जो कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन इट्स क्वाइट ऑन इन ऑर्डर है कि आप इसी ऑर्डर में बोले जी। सर सर इस ये पेशेंट जो का सिजेरियन सेक्शन किस वीक पे करना है? एक मिनट, 2-3 बोल रहे, एक बोले सर जी। हाँ सर ये पूछ रहे हैं, अगर इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रखे हैं कि मिस्टेकन डेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, ओलिगोहाइड्रोमनियास प्रोम एंड देन आईयूडी इज इसमें तो जो इन अलाइव है, और अगर लास्ट में हम ट्रांसफर लाए रख लें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। मैं तो आप चूंकि जो शुरू में बोली आप 2-3 बोल रहे थे, फिर वो बाकी चुप कर गए, आप दोबारा बोलिए डॉक्टर सनम। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैं फर्स्ट पे मिस्टेकन डेट्स रखूँ, देन इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, इन थर्ड स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, इन फोर्थ fetal growth retardation, and in fifth oligohydramnios, and in a sixth prom, and in a seven is a transverse line. Sir, तो ये बात ये है कि ओलिगोहाइड्रोमनियास जनरली मींस placental insufficiency. Placental insufficiency means
IUGR वो जो आपने ऊपर नीचे दोनों किया वो एक ही बात हो गई है ना। तो जी आखिरी क्या बोला आपने? सर ट्रांसवर्स लाए। ट्रांसवर्स लाई रियली वो लाइकर ठीक होता है, बेबी का साइज ठीक होता है, सिर्फ पोजीशन ठीक नहीं है, वो इतना मेरा ख्याल प्रोमिनेंट बात नहीं है इन डिस्कशन ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज या IUGR। ऐसे ही काम जी। सर देखिए सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री से लेकर करते हैं, जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे सर। मैं मेरे पास तो डॉपलर में हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और डक्टल फिनोसिस जो है वो कब करेंगे, ये जी अब बताएंगे। डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं? इन्हीं को डॉक्टर आशिफ जी बोलिए आप। डॉपलर में जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और डक्टल फिनोसिस करते हैं ना, वो हम कब करेंगे, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। नहीं फिर बोले मैं डॉपलर हम करते हैं ना मिड सेरेब्रल आर्टरी डक्टल फिनोसिस जो भी आपने बताया, वो हम कब करेंगे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मुझे वो तो लिखा कि 20 वीक्स पे करते हैं यूट्राइन आर्टरी का, 24 वीक्स के बाद करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी का, और जहाँ सीवियर एनीमिया है या वो वहाँ सेरेब्रल आर्टरी का करते हैं। ये तो इस तरह से इस सीक्वेंस में लिखा हो। सो जनरली स्पीकिंग फॉर IUGR आफ्टर 24 वीक्स आप SD रेशियो निकालोगे अम्बिलिकल आर्टरी। इस पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन कब करना है डॉक्टर अवैस का? जी बिल्कुल, ये करते जाइए। वैसे ने सही बोला कि अगर सारा कुछ ठीक रहा, इम्तिहान में ऐसे ही बोलिए, तो इफ एवरीथिंग इज ऑलराइट आई विल ट्राई टू टेक दिस प्रेगनेंसी बियॉन्ड 37 कंप्लीटेड वीक्स, यही अवैस वाला पेशेंट। और अगर कोई बीच में कोई ये मॉनिटरिंग की आप बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी कहीं पे आपके किक चार्ट में प्रॉब्लम आ गई, आपके CTG में प्रॉब्लम आ गई, आपके BPP में प्रॉब्लम आ गई, आपके डॉक्टर में एक नहीं है, सारे ही हैं, किसी एक में प्रॉब्लम आ गई तो आप सेक्शन कर देंगे उसका। सर इस पेशेंट का ना मैंने ये पूछ जो अब जैसे हिस्ट्री के अंदर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्मॉल हाइट, मेडिकल डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर उसका ठीक है, इन्फेक्शंस नहीं, एनॉमलीज उसकी रूल आउट हुई हुई हैं। अब जब तक हमें मैनेजमेंट से पहले स्कैन नहीं देंगे, स्कैन के अंदर इसके पैरामीटर्स जो थे, लाइकर नॉर्मल था, डॉपलर नॉर्मल था, लेकिन जो फीटल पैरामीटर्स थे वो 30 वीक्स के थे। So on the basis of history and examination, if it is asked कि what could be the cause of this small baby, वो हमने causes बोल दिए, फिर इस सवाल होगा इस इनमें से इस पेशेंट की कौन सी कॉज है, तो फिर हम हमारा जवाब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, क्योंकि सारे पैरामीटर इसके ठीक चल रहे हैं, इट इज ए हेल्दी बेबी है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है। और सर अब 34 वीक्स पे ठीक, एक मिनट, अगर सारे पैरामीटर ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल बेबी, अगर उनमें से कोई डिफेक्ट है तो इसका मतलब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कही है, विच आई डोंट नो व्हाई। ब्लड प्रेशर ठीक है, डायबिटीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इसको ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो इस तरह से बोलिए। तो वो इन्होंने कहा, फिर वो अगले चैप्टर में चले गए, तो IUGR सिमेट्रिकल होता है और एसिमेट्रिकल होता है, ये आया। तो सिमेट्रिकल IUGR किस में होता है और एसिमेट्रिकल किस में होता है, तो वो फिर इस पेशेंट बेसिकली जो इसकी कंप्लेन थी वो ये थी कि 30 वीक्स तक स्कैन, ग्रोथ स्कैन जो हो रहा है 2 वीकली, वो बढ़ रहे थे पैरामीटर्स। 32 वीक्स पे स्कैन हुआ तो पैरामीटर्स सेम थे 30 वीक्स पे, 34 वीक पे स्कैन हुआ तो पैरामीटर्स थे 30 वीक्स के, लाइकर और डॉपलर ठीक था। तो अब अगर बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही तो हम 37 वीक्स तक जाएंगे ना, ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको 34 वीक्स पे भी डिलीवर कर लेंगे। ग्रोथ नहीं, नॉर्मल डॉपलर, ये मैंने कहा ना, डोंट डिपेंड ऑन वन फीचर, आप 4 फीचर की बात कर रहे हो, उनको कलेक्टिवली अप्लाई करना है, आपने कलेक्टिवली अप्लाई करना है।
आप किक चार्ट से शुरू हुए, आप CTG कर रहे हो, CTG डेली करो, अगर ठीक ठाक है तो 24 आवर्स के लिए वैलिड है, तो फिर आप प्रोग्राम करेंगे प्रेगनेंसी को, टिल इट रिमेन्स वैलिड। तो फिर उसके बाद है ग्रोथ तो उसकी हो नहीं रही, चलो तो वो छोड़ दिया हमने। BPP है, अगर BPP उसका 8/8 10/10 है तो हम कंटिन्यू करेंगे। उसको कहे जी कि ये पैरामीटर एक सिर्फ जो है वो उनके जी उसका डॉपलर जो है वो उसमें आ गया, तो उसको इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन डिसीजन मेकिंग एक के ऊपर नहीं है, बाकियों को भी अप्लाई करेंगे। And sir, her history of unexplained IUD second pregnancy, उसकी हाँ इधर मतलब ये अराउंड अबाउट वो कहती है 32 वीक्स वाली जेस्टेशन थी कि जिसपे मेरा IUD हुआ था। तो अब वो इस चीज़ को लेके फिर हमारी प्लान ऑफ मैनेजमेंट में कोई तब्दीली और ये वो एक इंडिकेशन जरूर है फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, वो डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि वो आपके पास तो उसके डिटेल ही नहीं है, वो प्रिजम्पशन है, लेकिन आप तभी तो डेली उसकी मॉनिटर कर रहे हो ना। डोंट फॉरगेट कि आप ये कह रहे हो उसका डेली CTG हो रहा है, उसका ट्वाइस अ वीक BPP हो रहा है, उसका डॉपलर हो रहा है, और उसका सारा आप ये और क्लिनिकल उससे पहले, तो ये सारा कुछ करके उसको कलेक्टिवली आप अप्लाई करेंगे। मैं ये भी एक अच्छा हुआ आपने सवाल उठा लिया, सिर्फ कि जी BPP आ गया 6, यस वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्स एक्शन, लेकिन CTG अगर ठीक है मैं अगले दिन देख लूंगा। चले, ठीक है। थैंक यू 10 सर। मिनट, एक सवाल कोई और पूछना तो पूछ ले, वरना फिर खुदा हाफिज। सर आपने डॉपलर का बताया था वीक वाइज, प्लीज वो रिपीट कर दें। डॉपलर जो है रिकमेंडेड किताब में ये है कि 20 वीक्स पे करना है तो यूट्राइन आर्टरी का होगा, और अम्बिलिकल आर्टरी का 24 वीक्स पे होगा, और सीवियर अनीमिया जहाँ पे आप सस्पेक्ट करते हैं सेरिब्रल आर्टरी का, वो जब भी आप सस्पेक्ट करेंगे 28 वीक्स पे 32 वीक्स पे उस वक्त। चलें, अच्छा मेरा सेक्रेटरी आपको भेजेगा, आप प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर भेजिए। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।